दंगल टीवी के शो शुभ शगुन की एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी ने लगाए प्रोड्यूसर पर हरासमेंट जैसे गंभीर आरोप। क्या है पूरी कंट्रोवर्सी, सुनिए कृष्णा मुखर्जी की जुबानी। Yeah, so the Hello? first question would be कि actually ये जो मैटर शुरू कब हुआ था? So I started shooting for them in March end 2022, Okay. and everything was going good. Everything was fine. But then, industry में, हमारा ये system है that we get our paychecks 3. Yeah, 3 months after all the shoot Yeah, of the yeah, episode. Yeah, correct. yeah. So 3 months हो गए थे, and then 4 months हो गए, and then we all were just, panicking कि मतलब कब पैसे मिलेंगे. We all were stressed. Okay. So after 4.5-5 months, they gave us our first our check. That Alright. too, I had to fight for it. Okay. So I was literally begging them कि I need my check because I have a lot of kharcha. I'm going to get engaged also, so I need money. Correct. So I told them that I am not gonna come for the shoot if you don't give me my check because it's been already 4.5-5 months. Okay. So तब जाके उन्होंने एक check दिया, and then so first check we got in I think August end, and the second check we got was in October. Okay. So उसके बाद we did not get anything. Okay. Like nothing. Yeah. तो उसके बाद हमें कोई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, and also they used to make us shoot for 15-16 hours, which still I was still okay with that. हमेशा होता है यहाँ पे, मतलब मेल लीड्स का ऐसा होता है कि but their behavior was very, very rude. They did not know how to treat a girl or anyone on the set. तू तड़ाक करके बात करते थे, and the producer he used to खुले में बोलता था अरे मैं तो गुंडा हूँ and all that. So that attitude was there, and then once what happened was October 3rd, I was shooting and I was unwell. Okay. I told them that today I won't be able to shoot for more than 12 hours. Okay. So they were like हाँ ठीक है. They made me sit for like 2-3 hours, and I was really unwell. I was like पहले मेरा शॉट लगा लीजिए क्योंकि मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है. Okay. I'm feeling very unwell. So उन्होंने वो नहीं किया. And जब 12 घंटे हो गए, then they were like कि अब आपका पूरा सीन करेंगे, and उसके बाद एक रीशूट आया वो भी करेंगे. Okay. I was like I'm not gonna do that. हाँ correct. Yeah, so I was like I'm not gonna do that. I will still do it. You give me my check first. Correct. क्योंकि तब तक मुझे इंट्यूशन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है. Correct. या सो मतलब कुछ भी सेट पे होता था ना, तो हमेशा यही धमकी देते थे, देख लो जो करना है कर लो, पैसे नहीं मिलेंगे. तो हमें एकदम से वो हो गया था कि मतलब लाइक आर दे सीरियस कि मतलब सच में ऐसा कुछ है. तो आई टोल्ड देम दैट आई एम नॉट गोना शूट, गिव मी माय चेक फर्स्ट. दे वर लाइक चेक तो है नहीं मैम, शूट तो करना पड़ेगा. तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं करूंगी. एंड देयर वाज वन गाय प्रभास एंड समीर काजी. Okay. Sameer Kazi was the HOP of the show and Prabhas was the EP of the show. Okay. So I went to my room to change and all. Both of them came to my room outside. They were outside standing and they started banging the door. Okay. They started banging the door and इतने जोर से वो कर रहे थे, जो दरवाजा बजा रहे थे. And I was telling them that dude I'm changing right now. Okay. दरवाजा अगर टूटा then you guys are fucked. Correct. I'll call the police if you don't stop it. Correct. But उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. They were just banging my door, and there were so many people. Dress dada and all, makeup, hair, everybody. Few of the actors. Shrishti, there's one more actor. She was there. Shehzada was there. He was standing there when they locked me. तो शहजादा ने उससे बोला कि you can't do this to a girl. So he came and then opened the door. Again, they जैसे मैं बाहर निकलने लगी, this guy Prabhas he pushed me and उसने फिर से दरवाजा लगा दिया. Okay.
एंड ही वाज लाइक कि चुपचाप चेंज कर और शूट करने चल, तू तड़ाक। आई वाज लाइक बॉल्स, नाउ तो आई एम नॉट। अभी कोई ऐसे किसी से बात करेगा, कौन शूट करेगा? यू आर जस्ट अ ईपी, राइट? करेक्ट। So I was like, I am not shooting now. I am definitely not shooting now. I'll call the police. बोलते जा कर ले जिसको जो करना है, हम किसी से नहीं डरते। तो फिर उसके बाद सो पर्ल ग्रे उनकी एक वो थी, पर्ल ग्रे ने जस्ट ज्वाइन किया ही था हमारा शो। उनकी एक असिस्टेंट थी, शी वॉज द क्रिएटिव। सो शी केम एंड शी सॉ देयर बिहेवियर एंड शी गॉट रियली पिस्ड एंड शी गॉट रियली वरिड फॉर मी। ओके। So I was literally knocking कि खोल दो दरवाजा, don't do this. उसने वो आई, उसने दरवाजा खोला, she held my hand and she was like, she's not gonna shoot, she's going home now. And they were like, who are you to decide and all. तो उसने अच्छे से जवाब दिया and I was really scared because they all were giving me धमकी कि अरे नीचे जा, नीचे बंदा भेज, देखते इसकी गाड़ी कैसे निकलती है यहाँ से। तो द गेट बंद करवा, मेन गेट बंद करवा। सो वी यूज टू शूट देयर इन फेमस, आई थिंक फेमस स्टूडियो, या। सो हम लोग वहां पे शूट कर रहे थे, ये जो गोरेगांव में है। तो फिर उसके बाद शी वाज लाइक कि ये शूट नहीं करेगी, अब ये सीधा घर जाएगी, यू कांट बिहेव लाइक दिस। सो शी लिटरली हेल्ड माई हैंड एंड आई थिंक मेरा 4th फ्लोर पे था एंड मुझे पता है कि मैं कितने डर के मारे नीचे के वाले फ्लोर तक मैं चल के गई हूँ, बिकॉज दे ऑल वर रनिंग आफ्टर मी। ओके। एंड जब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, दे वर गिविंग मी दोज लुक्स एंड मैं पूरे रास्ते में रोते रोते घर गई हूँ। एंड मेरी नजर पीछे ही थी कि मतलब गाड़ी के पीछे थी कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा। आई कुडंट स्लीप दैट नाइट थिंकिंग कि यू नो दे हैव माई एड्रेस, व्हाट इफ दे कम होम। करेक्ट। हाँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सो या जब ये सब कुछ हो रहा था, द प्रोड्यूसर वाज ऑन द 3rd फ्लोर। ओके। एंड ही कुड हियर एवरीथिंग। और जो भी ये जो करने को बोला था, डोर लगाने के लिए, लैच लगाने के लिए बोला था, लॉक करने के लिए, और ये सब ये प्रोड्यूसर ने ही बोला था उनको। क्योंकि मैंने ये सुना कि इसने बोला कि ये जो लॉक लगा रहे हैं ना, इन्होंने ये पहले किसी शो में किया था, कुंदन ने, किसी एक्टर के साथ। तो वो बोलते कि वो सीधी हो गई थी। कहते हमें एक्टर को सीधा करना आता है। ओके। तो एंड व्हेन ही कॉल्ड मी, व्हेन आई वाज ऑन द वे, द प्रोड्यूसर कॉल्ड मी एंड आई वाज लाइक, अरे यार ये ऐसे कैसे, क्या सब कुछ हो गया, मैं वहां पे था नहीं, इतनी बात बढ़ गई, मैं अगर वहां पे होता तो ये सब कुछ नहीं होता एंड ऑल दैट बुलशिट। लेटर ऑन शहजादा टोल्ड मी आफ्टर 2-3 days दैट कि तुझे नहीं पता कि वो प्रोड्यूसर वहीं पे था और उसने ही तो बोला था ये सब कुछ करने के लिए। नहीं, मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे पता होता तो मैं FIR में उसका नाम भी लिखवाती ना, प्रोड्यूसर का। तो दे वर लाइक, ही वाज लाइक, नहीं, आई थॉट यू न्यू अबाउट इट, द प्रोड्यूसर वाज, क्योंकि मैंने अपने आंखों मतलब अपने कान से सुना उसको बोलते हुए कि लड़की है इसलिए बच गई। ओके। तो फिर उसके बाद आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन नेक्स्ट डे। मैंने प्रभास और इसके जो दूसरा जो बंदा था उसके लिए मैंने अपना FIR करवाया। एंड कंटिन्यूसली दीज पीपल वर कॉलिंग मी कि अरे शूट हमारा लेट हो रहा है, आओ आओ। मतलब किसी को कोई कंसर्न नहीं है कि लास्ट नाइट क्या हुआ मेरे साथ, कुछ नहीं, बस दे वर कंसर्न कि शूट करना है। तो मैंने उनको बोला कि पुलिस मेरे साथ आ रही है। सो प्रोड्यूसर ने मतलब बहुत ही वेरी 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 स्मार्ट, ही वाज लाइक अरे बेटा ऐसा मत करो, शो बंद हो जाएगा, ये वो। स्टिल आई वाज नाइव, आई वाज लाइक ठीक है, चलो ठीक है, ये बंदा मुझे बोल रहा है। बिकॉज दैट टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ही वाज द वन जिन्होंने आगे इनको बोला था, अदरवाइज उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती किसी लड़की को ये सब कुछ करने की। दे हैड हिज बैक। तो फिर उसके बाद मैं सेट पे गई एंड आई टोल्ड देम, आई ईमेल्ड द चैनल ऑल्सो, आई ईमेल्ड द प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, राहुल मीडिया प्रोडक्शन, ओके, that if these two guys are here then I won't be shooting. Okay. Then Swati Thanawala, उन्होंने मेरे मेल का रिवर्ट बैक किया from Rahul Media Production that I am taking charge of all this. I will make sure कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, you are safe and all. And
पर्ल का भी उधर से आया, पर्ल ने सीधा बोल दिया था, इफ कृष्णा इज कंफर्टेबल देन विल शूट, अदरवाइज वी विल नॉट शूट। तो मुझे इन लोगों ने मना लिया कैसे भी करके, आई स्टार्टेड शूटिंग। बट आफ्टर अ वीक ओनली, जस्ट आफ्टर अ वीक, आई सी दोज टू गाइज देयर। ओके। एंड आई टोल्ड देम कि आई टोल्ड यू कि मेरी ये शर्त थी कि अगर यहाँ पे होंगे तो मैं शूट नहीं करूंगी, बिकॉज आई फील अनकंफर्टेबल, आई फील स्कैर्ड, बिकॉज जिस तरह से ये लोग गाली गलौज देके मुझसे बात कर रहे थे, आई एम नॉट कंफर्टेबल। करेक्ट है। बेटा हम क्या करें, हमारे पास वो नहीं है, लोग नहीं है, इतने लास्ट मोमेंट में कोई आएगा नहीं, ये वो। एंड सब मतलब वो नॉर्मल हो गए, दे ऑल वर लाफिंग एंड ऑल, ये वो। एंड दैट टाइम ऑनेस्टली आई, तब तक तो मुझे पता चल गया था कि कुंदन है क्या, राइट। तो मुझे बस ये हुआ कि मैंने नोटिस तो ऑलरेडी दे रखा था, बिकॉज आई टोल्ड दीज पीपल दैट आई एम गेटिंग मैरिड, एंगेज्ड एंड ऑल। तो 3 months का नोटिस मैंने ऑलरेडी दे दिया था। सो आई टोल्ड माई सेल्फ कि अभी 3 महीने चुपचाप काम कर लो, और इसके बाद अपने आप चले जाओ। ओके। बट द चैनल पीपल डिड नॉट वांट टू वर्क विद दीज पीपल, ओके। with Kundan, because he has attitude problem. He has attitude problem and they were very unprofessional. तो चैनल को नहीं करना था काम, एंड चैनल पीपल दे वर लाइक कि अरे हमारा नाम खराब हो रहा है, कि मतलब हमारे मतलब चैनल की जो लीड है उसको ऐसे बंद कर दिया, ये वो, तो हमें नहीं करना है आगे। सो चैनल ने एब्रप्टली शो बंद कर दिया। जब चैनल ने एब्रप्टली शो बंद किया तो उसके बाद कुंदन ने सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। So, शो बंद कब हुआ? इन which month of 2002? I think October end or November first week. Okay. Yeah. So Kundan blamed you. Yeah, he blamed me. He put the blame on me that because of her हमारा शो बंद हो गया और हमें नुकसान हुआ, जब बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो जो ओरिजिनल एफआईआर उन्होंने तभी फाइल किया था, या तो उस पे कुछ व्हाट इज द पुलिस सेइंग ऑन दैट? इन लोगों ने बहुत बार बुलाया था, एंड कुंदन ने मुझे बहुत बार, मतलब ही इज वेरी स्मार्ट। ओके। he was very smart, he was blackmailing me कि नहीं ये सब मत करो, इन सब में कुछ नहीं रखा है, अपना करियर खराब कर लोगी, ये कर लोगी, वो कर लोगी। तो मैंने होल्ड पे रखा था। लाइक ही ट्राइड कि मैं ये केस वापस ले लूं, पर मैंने नहीं लिया। एंड ही कॉल्ड माय डैड सो मेनी टाइम्स, तो मैंने फाइनली डैड को बोल दिया था कि ब्लॉक हिम। ओके। He used to call my dad and he used to tell my dad कि अपनी बेटी को बोलो ये केस वापस ले ले, क्योंकि ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा। ओके। या तो मैंने सीधा अपने डैड को ये बोल दिया था कि ब्लॉक हिम। ओके। एंड you haven't got your full money also? No. 5 months salary is still there. It's pending. Actually not just me, किसी को भी नहीं मिला। ओके। या और अभी क्या हुआ कि कल wrote about it, what was the pushing point? The pushing point was कि honestly अनिल, बहुत टाइम से हम लोग चाहते थे ये सब कुछ करना। ओके। एंड 1 साल तो पूरा हमें लटकाया है कुंदन ने। लाइक आई कैन आई हैव शेयर्ड माई चैट्स एंड ऑल, जितनी भी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, जहाँ पे सिर्फ मैं बात कर रही हूँ कि सर पेमेंट कब मिलेगी, सर मेरी शादी है, सर मेरी एंगेजमेंट है, सर आई नीड मनी, सर आई नीड मनी, सर, जहाँ पे उनका कोई रिप्लाई नहीं है। ओके। तो पूरा 1 साल उन्होंने हमें फोन करके, तो प्रोडक्शन वालों ने फोन करके लटकाया है, आपको मिल जाएंगे पैसे, कहीं नहीं जाएंगे आपके पैसे सेफ है, हम लोग चोर नहीं है, हम लोग ये नहीं है। 1 साल इन्होंने ऐसे लटकाया हमें। और 1.5 जो आधा साल था वो उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। ओके। देन वी वेंट टू सिंटा, देन वी वेंट टू सम पुलिस स्टेशन, इधर उधर क्राइम ब्रांच एंड ऑल व्हाट नॉट। ओके। पर कहीं से भी कुछ नहीं हुआ, लाइक नथिंग। एंड मेरा ये काफी टाइम से करने का मन था कि मतलब मैं जस्ट एंजाइटी हर रोज डिप्रेशन हर रोज, ये सब चीजें, मैं अपनी हेल्थ खराब कर रही थी। आई वाज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माय वर्क ऑल्सो, कि मैं कोई ऑडिशन दूं या कुछ भी। तो मैंने जस्ट डिसाइड कर लिया कि आई विल जस्ट पोस्ट इट, कोई हो मेरे साथ नहीं हो, आई विल पोस्ट इट, बिकॉज आई नीड माई मनी, दैट इज माई हार्ड अर्न मनी, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट।
सिंटा ने कुछ मदद किया? सिंटा ने नहीं, सिंटा ने बहुत बार हमें मीटिंग्स के लिए बुलाया, बहुत बार कुंदन को मीटिंग के लिए बुलाया, बट सेम एटीट्यूड वो वहीं पे देता था। और राहुल ठाकरे को भी काफी बार उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, बट ही नेवर केम। तो सिंटा ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हो पाएगा कुछ। And he and the producer has also put out a post on Insta. I So know. yeah. It's stupid. It's stupid. Like अगर वो इतना वो कुछ लिख रहे हैं कि she's putting allegation on me, why would I do that? I have all the proofs. मेरे पास अग्रीमेंट पेपर है, मेरे पास उन्होंने जो सिर्फ 2 महीने का मुझे सैलरी दिया था, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है, मेरे पास मेरे डेट्स लिखे हुए हैं लिटरली एक पेपर में, पूरा मेरा अमाउंट लिखा हुआ है एक पेपर में, मेरे पास पूरी चैट है जहाँ पे मैंने उनको दिन में 10 बार उनको मैसेजेस किए हैं कि सर पैसे कब मिलेंगे, पैसे कब मिलेंगे, जहाँ पे उनको एक रिप्लाई नहीं है। Okay. तो हाउ कैन दैट गाय से कि मैं उनपे झूठे एलिगेशंस लगा रही हूँ? Yeah. And plus, he's saying that he has fired both those guys, and he was saying that they were there on site only. Of course they were there. Ask anyone. काजोल है, पापिया है, किसी से भी पूछो, अनुराधा जी है वहाँ पे, शहजादा है, ask anyone. Those 2 people were there after a week. Actually क्या था, वो आ तो 2 दिन में ही गए थे, वो लोग नीचे वाले रूम में बैठ के छुप छुप के काम कर रहे थे। Okay. So बाहर हफ्ते के बाद ही आ गए थे वो लोग, कोई उन्होंने निकाला नहीं था उनको। Yeah. So basically now, so are you following up with the police to see केस का क्या हुआ? FIR का कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सी इन द एंड दैट ठाकरेज। और ये जो कुंदन इतनी हवा खा रहा है, ये सिर्फ ठाकरों की हवा खा रहा है, वो खुद कुछ नहीं है। ही इज नथिंग। करेक्ट। और हमें मतलब हमने जो हम क्राइम ब्रांच में गए थे, हमने वहां पे भी उनकी रिपोर्ट लिखवाई थी, एंड दैट इंस्पेक्टर ही रियली हेल्प्ड अस। ही कॉल्ड कुंदन सो मेनी टाइम्स बट ही नेवर केम। एक बार वो आया था एंड ही वॉज स्कैर्ड, उससे कुछ नहीं बोला गया बिकॉज ही न्यू ही वॉज रॉन्ग। उसने एडमिट किया कि वो गलत था वहां पे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसको बुलाया वो नहीं आया, उसने कोर्ट से नोटिस भिजवाया फॉर मीडिएशन। ओके। एंड माय लॉयर टोल्ड मी नॉट टू सिट देयर फॉर मीडिएशन। ओके। Not to go for the mediation, because if we go for the mediation, then our money is gone. So we did not do it. Like I was there, Srishti was there, and Kajol, we 3 were there. And उनकी टीम में से कोई भी नहीं आया था, ना कुंदन आया था, ना कुंदन का लॉयर आया था. It was just us and my lawyer. Yeah, and nothing happened after that. So means you are looking. So means you are looking for this punishment to those guys and plus your money back. Yeah. And since you put the post, industry से कितनी support मिला है तुमको? How much support? All my friends छोड़ो, there are so many people from the industry, they all are supporting me. If you go to my Insta, then you'll know कि industry के कितने लोग मुझे support कर रहे हैं. It's good ना कि that at least the people are supporting you in this. Because I tell you Anil, कहीं ना सबके साथ यही हो रहा है. If you go see अर्जित का पोस्ट, उसने भी यही लिखा है कि मेरे पिछले 2 शो के पैसे मारे गए हैं. और ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हो रहा है अब. Yeah. So something needs to be done about this. Exactly. चेतन हंसराज, imagine he such a इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके इससे पहले जो उन्होंने कुछ तो एक शो किया था, उसके पैसे उनके मर गए, वो दिए नहीं उनको. He was devastated. And imagine back to back, इस शो के भी पैसे नहीं मिले उनको. उनकी इतनी हालत खराब थी, इनकी इतनी ज्यादा हालत खराब थी. बट दिस गाय, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कुंदन को कोई फर्क नहीं पड़ा. आफ्टर जब तुमने वो मीडिएशन एफर्ट जब तुम टर्न डाउन कर दिया, उसके बाद डिड ही अप्रोच यू अगेन फॉर अ सेटलमेंट? No, he did not. So he did not. So he's completely quiet after that. Yeah, he was quiet.
तो एक्चुअली दिस इज मतलब ये इंडस्ट्री में एक्चुअली मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए ना, मतलब बट हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है. देर आर सो मेनी पीपल जो बेचारे कुछ बोलते नहीं है. आई एम स्टिल ब्लेस्ड. आई हैव माई फैमिली, आई हैव माई हस्बैंड, आई स्टिल हैव सपोर्ट. बट देर आर सो मेनी पीपल जिनके पास सपोर्ट नहीं है. करेक्ट. हु हैज टू रन देयर फैमिली. उनका क्या? एंड वही लोग फिर जाके सुसाइड कर लेते हैं. ट्रू. राइट. करेक्ट है. या ऑब्वियसली अगर आपकी हस्बैंड है 5-6 महीनों का पूरा एफर्ट करने के बाद इफ यू डोंट गेट इंटरेस्ट. इमेजिन, तुम्हें रेंट देना है घर का, तुम्हें ट्रैवल करना है, तुम्हें खाने पीने का खर्चा करना है, कितनी सारी चीजें होती हैं. एंड प्लस द वे दे थ्रेटन यू, दैट आल्सो वाज टोटली. एग्जैक्टली. दे कांट डू दैट. दे कांट. इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल. लेट्स होप दैट आपको जस्टिस मिले. आई होप यार. आई सीरियसली आई प्रे. मुझे ही नहीं, मेरे शो में जितने भी लोग थे वो आगे आए ना आए, बट उनको भी मिले. आई नो सम ऑफ द पीपल आर स्कैर्ड, दैट्स व्हाई वो आगे नहीं आ रहे हैं. बट इट्स ओके, सबको मिले. दे ऑल नीड मनी. करेक्ट है. एंड वर्क वाइज व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? वर्क वाइज बस अभी थोड़ा सा मैं खुद ठीक हो जाऊं, बिकॉज मैं इतनी ज्यादा एंजाइटी में थी, इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी. नहीं निकलती वो चीज. जब भी कोई ऑडिशन देती हूँ दिमाग में वही आता है, व्हाट इफ दे डू द सेम विद मी. चेतन के साथ भी यही हुआ था, मेरे साथ भी यही हुआ, अगर व्हाट इफ नेक्स्ट मेरे साथ फिर से ये हो. सो दैट्स व्हाई मुझे ही अपने अंदर से ये फियर निकालना था. मैंने निकाल दिया. नाउ आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क नाउ. Hope we see you on screen very soon. Yes, soon. Cool. Okay, Yeah. Thank you very much. Thank you, Anil. Thank you so much. Bye. टेलीविजन के कई एक्ट्रेस कृष्णा के सपोर्ट में उतरे. इसी में से एक हैं अली गोनी. आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है अली का इस पूरे मामले पर. हाय गाइस. सो कृष्णा ने जो भी कल डाला, जो उसने लिखा है, जिसके बारे में लिखा था, वो इंसान आज अपने पोस्ट पे डाल रहा है कि कृष्णा झूठ बोल रही है और वो सब कुछ झूठ है, जो बिल्कुल झूठ नहीं है. क्योंकि जब कृष्णा को उन्होंने कमरे में बंद किया था, कृष्णा ने मुझे भी कॉल किया था एंड वो मड में शूट करती थी, कोई पहुंच नहीं पाया, बट उन्होंने कृष्णा को लॉक किया था. शी वॉज क्राइंग इन द रूम. शी कॉल्ड मी, शी कॉल्ड चिराग, एवरीबडी, बट ऑब्वियसली बहुत दूर था, कोई हेल्प नहीं कर पाया. आज ये इंसान ये सब बोल रहा है. एंड मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर वो इंसान जो भी है, कुंदन, मैं पर्सनली उनको जानता नहीं, बट अगर आप लोगों ने इतना श्योरिटी से बोल रहे हो कि यू हैव पेड हर, सो मे बी आपके पास बैंक डिटेल्स तो होंगी, क्योंकि टीवी का जो भी पैसा होता है वो बैंक ट्रांसफर होता है. सो आई एम श्योर आपके पास बैंक डिटेल्स होंगी. तो क्यों नहीं आप वो बैंक डिटेल्स हमको दिखा दो. कृष्णा के अकाउंट में आपने उसको पूरा पैसा पे किया है. एंड प्लीज ऐसे झूठ मत बोलिए, क्योंकि कृष्णा झूठ नहीं बोल रही है. उसने कितना सफर किया है हम सब उसके दोस्त जानते हैं, हम सब ने देखा है. सो अगर आपके प्रूफ है तो प्लीज दिखा दीजिए. एंड जो अमाउंट है वो कोई छोटा अमाउंट नहीं है. लाइक इट्स 39 lakhs. एंड 39 lakhs, आप कितने भी अमीर इंसान हो या कुछ भी हो, छोटा अमाउंट नहीं होता है. किसी एक्टर की मेहनत है, दिन रात सेट पे 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे बहुत काम करता है एक्टर, और उसका पैसा आप खा रहे हो क्योंकि आपको नहीं देना है. रीजन शायद आप बहुत अच्छे से जानते हो और आप लोग ही रीजन बताओगे. एंड आई डोंट नो, अभी वो बोलेंगे कि चैनल ने नहीं दिया है. सो आई एम श्योर कि चैनल तो हमेशा ड्यू क्लियर कर देता है. चैनल कभी किसी का पैसा नहीं खाता है. हमारा आज तक कभी किसी चैनल नहीं खाया. हमने बहुत प्रोडक्शन के साथ काम किया है, इतने शोज किए हैं, हमारा पैसा कभी नहीं आज तक अटका. और 39 lakhs कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है. तो ऑब्वियसली शी विल फाइट फॉर इट, और वो लड़ेगी. एंड आपको जितना डराना है डराओ, हम सब उसके साथ खड़े हैं. आप उसको डराइए, आइए, हम सब साथ खड़े हैं उसके. इस पूरे मामले में आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जस्ट शोबिज को.